Good evening to all of you. Dear Rotarians, dignitaries, Rotarian Hemali Shah from District 3142, Very Literacy Group Coordinator, Rotarian Anju Gandotri from District 3250, SI Anju Kundu, Mountaineer, Rotarian Julia Gangwani, District from 30311, Rotarian Preeti Saini, District 3250. I welcome all of you to this very group of Zoom meeting where we come to know about women's empowerment this meeting. And welcome all of you. Julia, hand over to you. Thank you giving me opportunity to this welcome evening in this welcome. Thank you. Thank Good evening, everyone. I am Rotarian Hemali Shah from District 3142. I am a Very Literacy Group Coordinator. I welcome our today's speaker, Anita Ji Kundu, Very Group Coordinator, Julia Ji. I welcome all the Rotarians from all over India. Welcome all of you. In Very Literacy Group, we had conducted IT teachers training program, which is conducted by DGN Swati Harkal. In that we had trained around 300 teachers. This is a part of teachers training teach module, and it is a part of teachers training. T means teachers training. So we are going with the modules. So we have started with the T. Now E for e-learning. So we are training the Rotractors on online, and they we train them the English. We are the Rotarian Nirmala Ji from Chennai. She is training the Rotractors in English, and they'll train the interactors and the other students who are from vernacular medium. और ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जहां बच्चे हिंदी है, आजकल इंग्लिश का बहुत जरूरत होता है, तो वहां पे ये रोट्रैक्टर्स ऑनलाइन उन बच्चों को इंग्लिश ट्रेनिंग देंगे. उसका हम लोगों ने अभी रोट्रैक्टर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो चुका है. वो 5 दिन का ट्रेनिंग है. वो खत्म होने के बाद वो रोट्रैक्टर्स अलग अलग जगह पे ऑनलाइन बच्चों को इंग्लिश सिखाएंगे, जिसकी अभी जमाने में बहुत जरूरत है. फिर अंडर चाइल्ड डेवलपमेंट, सी मींस चाइल्ड डेवलपमेंट, तो अंडर चाइल्ड डेवलपमेंट हम लोग अभी एक ये प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं कि जिसमें
बच्चों को हमारे हेरिटेज और उसके बारे में हम लोगों को बताना है। तो हम लोग एक प्रोग्राम लाएंगे जिसमें अगर हम सब रोटरी ग्रुप्स कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करते ही है हमारे फेस्टिवल्स, तो उन लोगों ने उसको वीडियो बनाना है, वीडियो बना के हमको भेजना है, वो हम लोग करेंगे। उसका डिटेल्स आपको सबको ग्रुप में मिल जाएगा। और भी बहुत कुछ है आगे। अभी आज से जैसे हम लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट का सीरीज स्टार्ट किया है। वी आर स्टार्टिंग विद द सेल्फ डिफेंस, जिसमें अभी के जो अभी का जो ये युग चल रहा है, आप सब पता है कि बाहर बच्चे अपने बेटियां जाती है, बाहर जाती है, हम लोग भी बाहर जाते हैं, तो थोड़ा बहुत डर लगा रहता है कि लेट नाइट में हम लोग वापस आएंगे। तो उसमें हमारे बच्चे को, हम लोगों को, लड़कियों को, यंगस्टर्स को ट्रेन करना है। उसके लिए हम लोगों ने फर्स्ट वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस से वी आर स्टार्टिंग। उसके बाद वो इट इज फॉलोड बाय फिजिकल हाइजीन होगा, उसके बाद में मेंटल हेल्थ भी होगा, उसके बाद में लीगल राइट्स भी होगा, एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग एक हमारा जो लिटरेसी ग्रुप है वो धीरे धीरे कुछ न कुछ प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा है। आज के हमारे जो सेल्फ डिफेंस के जो स्पीकर है अनीता जी, मैं चाहूंगी अंजू जी आप उनका इंट्रोडक्शन दीजिएगा। ओवर टू अंजू जी। Thank you so much, Himali. Thank you so much, Himali. I request the host to be muted. Good evening, friends. अनीता जी को हम सबका प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। It's my proud privilege and honor to introduce an amazing personality, Anita Kundu, who is serving as a sub-inspector in the Haryana Police. Her achievements are as high as the numerous mountain peaks she has conquered, including the Mount Everest. Let us get to know the achievements of this world-famous mountaineer, Anita Kundu, who makes all of us Indians so proud. She has passed all the courses related to mountain climbing from 2009 to 2011, and thereafter she has not looked back, and she went on to capture the most challenging mountain peaks. The list of the amazing peaks she has conquered reads as follows. इन्होंने तो conquer किया, हमें खाली नाम पढ़ने में इतनी difficulty हो रही थी. So it's Mount Santopant at Gangotri, Uttarakhand in July 2011, Mount Kok State in Leh Ladakh near the China border in October 2011, the Iceland Peak in Nepal in April 2013. And then she climbed the Mount Everest from the Nepal side in May 2013, and from the China side, she climbed the Mount Everest up to 22,000 feet and had to give up due to bad weather in April 2015. Undaunted, she went on to again conquer the Mount Everest from the China side in May 2017. Anita Kundu is the first and the only Indian woman to conquer Mount Everest from both the China and the Nepal sides. She started a mission to conquer the 7 summits in all the 7 continents in March 2018. Kar Stan's Pyramid Peak in Indonesia was conquered in March 2018, and then she struggled to conquer Mount Denali in USA in June 2018. The highest peak of Europe, Mount Elbrus, was conquered in August 2018. The highest peak of Africa, Kilimanjaro, was conquered in October 2018. And the highest peak of Antarctica, that's the Mount Vinson Massif, was conquered in Jan 2019. She emerged as the first Indian woman to conquer Mount Everest thrice in May 2019. Her dedication and determination led her to conquer the Mount Manasalu Peak, situated at 8,163 meters in Nepal at the wee hours of 3:20 a.m. in the morning in September 2019. That is some dedication, Anita ji.
Thank you, ma'am. Thank you. The highest peak of South America, Aconcagua Peak, was conquered in January 2020. Then the Mount Dudhughera at Uttarakhand was conquered in October 2020. The Mount Lobuche in Nepal was conquered in April 2021. Apart from all these peaks that ma'am has conquered, Anita Kundu is the brand ambassador of various universities in India. She has received the Nari Shakti Award and the Kalpana Chawla Award from the Haryana government. This goes for a salute, ma'am. Thank you. Anita ji recently received the coveted and the highest honor of adventure in India, the Tenzing Norgay National Adventure Award from the Honorable President of India. Let us all welcome the Mountain Lady of India, Anita Kundu. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. In addition, I would say मैं सबसे request करूंगी, हम सब महिलाएं हैं, सब हम रोटेरियंस हैं, so please जहाँ पे भी हम हैं खड़े होके standing ovations जी से अनीता जी को welcome कीजिए. अरे नहीं. Yes, yes. Thank you. Well deserved, ma'am. Over to you, Julia. Over to अनीता जी. अनीता जी, अब आपकी बारी है, हमें इंस्पायर कीजिए. अंजू जी ने तो आधे घंटे में आपकी हिंदी प्रोफाइल को इंग्लिश में करके सुना दिया. आपके लिए प्रॉब्लम होगा कि मैं हिंदी में बोलूंगी क्योंकि हरियाणा वाले हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमें बहुत मजा आएगा. क्योंकि हरियाणा वाले हिंदी को भी हाथी हरियाणवी में बोलते हैं. अब आपके ऊपर है, अब हमें आप इंस्पायर कीजिए अनीता जी, स्टेज आपका. सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगी कि आपने इतना मान सम्मान दिया, और जुलिया जी तो हमेशा जुड़े रहते हैं मेरे साथ, और मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लोगों से बात करती हूँ. और आपको बता दूं, मैं दो दिन से फीवर में थी, और आज 1 घंटा पहले मैंने सोचा कि मैंने कोई दवाई नहीं ली, और लेकिन मैं इस मीटिंग से जुड़ने के लिए मेरा फीवर भी खत्म हो गया. तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं एक ऐसे परिवार के साथ हूँ, और खासकर जहाँ पर महिलाओं का परिवार है, और मैं इस विषय पे बहुत मेरा मन है, मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ हरियाणा में, गांव को गांव और शहरों में. लेकिन इसके ऊपर बड़े गंभीरता से काम करने की हम सबकी जरूरत है, और ये हमारे लिए नहीं है, आने वाली हमारी बेटियों के लिए कोई न कोई तो जरूर लड़ेगा, तभी जाके बदलाव होगा. और आज का जो टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट, और खासकर हम कैसे अपनी आत्मरक्षा खुद करें, इसमें कुछ बातें मैं हमेशा जब चलती हूँ तो नोट करती हूँ. एक लड़कियों के मामले में भी और महिलाएं भी, हम कहाँ पर क्या, सबसे पहले हमने हमारी क्या गलतियां हैं उनके ऊपर देखना पड़ेगा कि हम जब शिकार होते हैं किसी अपराध का, या किसी हमारे ऊपर कोई अटैक होता है, तो हमारी क्या कमजोरी रहती है, उन विषयों पे मैं जरूर बात करूंगी. और बात करती हूँ वो सबसे पहले 2 मिनट वुमेन एम्पावरमेंट की. मैं हमेशा हर स्टेज पे एक बात कहती हूँ जुलिया जी, कि जब तक हमें आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी, जब तक हमें बराबर का अधिकार परिवार में नहीं मिलेगा, जहां हम जन्म लेते हैं, जहां हमारी माँ एक बात सोचती है, जब जन्म होता है हमारे परिवार में बातचीत चलती है, तो जब लड़के की बात आती है तो लड़के का पलड़ा ज्यादा भारी रहता है और लड़की का पलड़ा हमेशा डाउन रहता है. माँ हमेशा कहती है ये तो अगले घर चली जाएगी, इसका क्या है. लेकिन मुझे ये शब्द बहुत दुख करता है कि हमने जहां पर जन्म लिया वहीं पर बराबरी का दर्जा नहीं मिला, तो और कौन देगा समाज के अंदर. तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले हम अपने लिए लड़ना, और उसके लिए हमने शिक्षा बहुत जरूरी है. जब तक हम शिक्षित नहीं होंगी, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, तो हम अपने अधिकार लेने में कामयाब नहीं होगी. और पढ़ी लिखी औरत मैं उसी को मानती हूँ जो फाइट कर पाए अपने मामले में. तो मेरा बहुत सारी महिलाओं से वास्ता पड़ता है. मैं सोशल प्रोग्राम बहुत करती हूँ, गांव में, पंचायत लेवल पे, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, हरियाणा सरकार के भी मैं बहुत सारे एज ए मोटिवेशनल स्पीकर में जाती हूँ. तो मैं ये देखती हूँ कि हम दोगलेपन में जीते हैं, दावा करते हैं कि हम कामयाब हैं. और जब मैं बात करती हूँ लड़कियों से, महिलाओं से, कामयाब महिलाओं से, जो मेरे हरियाणा पुलिस से लगा लीजिए, खुद पुलिस में है लेकिन एटीएम अपने हस्बैंड के हाथ में रहता है. कहाँ पैसा लगाना है, उसने खुद के ऊपर भी खर्च करना है तो हस्बैंड से पूछ करके. और लगभग जितनी भी महिलाएं हैं उनके हस्बैंड या तो सर्विस में नहीं है या खेती बाड़ी किसान है,
मतलब कि एक कामयाब इंसान ना हो करके भी हम सारे अधिकार उनको सौंप देते हैं, और वहां पर एक ही बात कहलाती कि बहुत अच्छी नारी है, पतिव्रता है, ये है वो है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो थोड़े से कड़वे हैं, और मुझे वहां पर कमी नजर आती है तो हमारी खुद की आती है। जब तक हम खुद के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन हमारे लिए लड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि हम महिलाओं ने शिक्षा, मैं शिक्षित महिला उसी को मानती हूँ जो खुद अपने अधिकार अपने हाथ में लेना जानती हो और उसके लिए लड़ना जानती हो, चाहे वो मदर के साथ लड़े, चाहे वो फादर के साथ लड़े। मैं बचपन से ही मैं अपनी माँ को हमेशा फाइट करती आई हूँ, और हमेशा मैंने सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी मदर इन चीजों को बहुत अच्छे से समझती है, और उनके अंदर भी वो गुण है। उन्होंने अपने मायके में भी फाइट करके उन अधिकारों को लिया, अपने ससुराल में आकर के भी अपने फाइट करके अपने बच्चों को पाला। मेरे फादर जब मैं 13 साल की थी तब एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद मेरी माँ ने फाइट किया और हमारे को इस लायक बनाया, और उन्होंने अपने अधिकारों के लिए फाइट किया। वो मेरे फादर हमेशा मेरी माँ को आपसे पहले दर्जा देते थे, और हमेशा मेरी माँ से ही डिस्कस करके वो कोई काम करते थे। बहुत कम पुरुष होते हैं ऐसे जो जूलिया जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? Yes, हेलो? yes, बहुत अच्छी yes, आवाज yes. आ रही है, चलिए कैरी ऑन। तो बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं। मैंने मेरे फादर जैसे, मैं ये नहीं कह रही कि मैं अपनी बड़ाई कर रही हूँ, मेरे फादर मेरी मदर के साथ कपड़े वॉश करवाते थे, मेरी मम्मा रोटी बनाती थी तो पापा मेरे सब्जी बनाते थे। मैंने अपनी फैमिली से सीखा है, और हमारे बहन भाइयों में भी उन्होंने ये चीज डाली है, अगर मैं पोछा लगा रही हूँ तो भैया झाड़ू लगा रहे हैं। यानी कि हाँ, ये नहीं है कि ये लड़का का काम है, ये लड़की का काम है। तो इस चीज को बदलने के लिए हमारे को शुरू से ही अपने बच्चों के अंदर बदलाव लेके आने पड़ेगा, और इस बात को उनके दिमाग से खत्म करना पड़ेगा कि ये लड़का है, ये लड़की है। ये उनके दिमाग में डालना पड़ेगा कि दोनों का अधिकार है, और दोनों को बराबर अधिकार है। ये नहीं है कि आप लड़के हैं तो आप जो भी प्रॉपर्टी है वो आपकी होगी, आपकी इतनी ही आपकी बहन की है, इतनी ही आपकी है। ठीक है, वो लेना ले जाना बाद की बातें हैं, लेकिन उसको बराबरी का दर्जा दें। जब तक हम आर्थिक रूप से महिलाएं अपने मायके में मजबूत नहीं होगी, तब तक कभी भी कोई भी हमारा वो सम्मान नहीं करेगा जो एक सम्मान मिलना चाहिए। ये एक कमजोरी भी है देश की, क्योंकि जब तक जिसके पास आर्थिक रूप से स्ट्रांग होता है तो उसकी लोग हाजिरी भी मारते हैं। ये कड़वी बात भी है, लेकिन ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आपके पास कुछ है तो लोग आपको पूछेंगे, अदरवाइज आपके पास नहीं है तो लोग आपको नहीं पूछेंगे। और यही परिवारों में है, यही परिवार के अंदर है। जिस भी महिला के पास प्रॉपर्टी है उसकी एक वैल्यू अलग से होती है। तो मेरा ये मानना है आर्थिक रूप से महिला का मजबूत होना बहुत जरूरी है। दूसरा, पढ़ाई बहुत जरूरी है, और पढ़ाई का मतलब ये है कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखे। बहुत सारी मैंने महिलाएं देखी है, आप मेरे साथ चलेंगे या आप खुद भी देखती होंगी, वो प्रोफेसर हैं, वो इंजीनियर हैं, वो डॉक्टर हैं, वो पुलिस में है, लेकिन वो सब फैसले उनके हस्बैंड लेते हैं। इवन गांव में सरपंच हैं जो महिलाएं, वो नाम की सरपंच है, लेकिन फैसले सारे उनके हस्बैंड लेते हैं। और वहां पर प्रॉब्लम यही आती है कि सास बहू को बोलती है कि आप बाहर मत जाओगी, ये तो आदमियों का काम है, ये तो आदमी करेंगे, ये वहां आप नहीं जा सकती। ऐसा क्यों नहीं है कि हम पुरुषों से, मेरा ये मानना है कि महिला पुरुषों से ज्यादा अच्छा काम कर सकती है हर मामले में। एक टाइम में महिला 5 काम संभाल सकती है। वो किचन में भी होती है, वो वॉशिंग मशीन को भी साथ में हैंडल करती है, वो घर के और काम भी निपटाती है, वो साथ में खाना भी खिला रही है। 10 कामों को वो एक साथ में। लेकिन अगर पुरुष को एक बार रसोई में भी खड़ा कर देना, उसको स्पेशल दूध पे खड़ा कर दे, उस दूध को भी निकाल देगा। तो वो हमारे से कैसे आगे हो सकते हैं। सबसे पहले हमने अपनी शक्ति को, अपनी पावर को हमें समझना होगा कि हम कितने मजबूत हैं। दूसरा, हम दूसरे पर डिपेंड रह के ज्यादा जीते हैं। मेरा ये मानना है कि खुद के ऊपर डिपेंड हो, खुद को आत्मविश्वास इतना पैदा करो कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। व्हीकल आना चाहिए, अपने काम खुद करें, हर उसमें कॉन्फिडेंस। और सबसे मेन चीज ये कहाँ से शुरुआत होगी, आज खासकर मैं लड़कियों की बात करती हूँ, खासकर मेरे हरियाणा में भी बात करती हूँ कि लड़कियां जो हमारे बेसिक काम है, जो घर के काम है, जो स्टार्टिंग से हम करते हैं, उन कामों को आज दूर हट गई हैं। उनका बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो काम, जब छोटे छोटे काम सीखते हैं तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है। जब इंसान के अंदर आत्मविश्वास होता है तो वो कुछ भी कर सकता है।
आत्मविश्वास के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। और आत्मविश्वास तब आएगा जब हम छोटे छोटे कामों को करेंगे, कभी उसको तोड़ेंगे, कभी उसको फोड़ेंगे, कभी उसको कुछ करेंगे, फिर उसको हम अच्छा करेंगे, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे रोटी बनानी आती है, हाँ मुझे सब्जी बनानी आती है, हाँ मैं घर को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती। तो उससे कॉन्फिडेंस, हम घर को हैंडल करना सीख जाते हैं तो हम ऑफिस को भी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, यानी हर चीज को हम कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी काम हो, और खासकर जो हमारी बेसिक जो हमारा घर का काम है, उसको तो जरूर हमें सीखना चाहिए। आत्मविश्वास के साथ, आत्मविश्वास ही इंसान को आगे लेके जाता है। मैं एक आम परिवार की लड़की हूँ, और मेरा बैकग्राउंड में अगर जाएंगे, मेरी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। 13 साल में मेरे फादर इस दुनिया से चले गए थे। मेरी मदर बिल्कुल अनपढ़ है, मेरे घर में नाम तक नहीं लिखना आता। लेकिन मेरी मदर के अंदर एक चीज थी, वो बहुत अच्छी कला थी उसके अंदर। वो खाना बहुत अच्छे से बनाती थी, वो सिलाई बहुत अच्छे से करती थी, बहुत अच्छे सूट सिलती थी। आज मैंने किसी टेलर पे, कितना भी बढ़िया प्रोफेशनल टेलर हो, जो मेरी माँ सिल सकती है वो कोई नहीं सिल सकता, इतने अच्छे डिजाइन बनाती थी। उनके अंदर कढ़ाई करने की बहुत अच्छी कला थी, घर की डेकोरेशन करने की बहुत अच्छी। उसी कॉन्फिडेंस ने मेरे फादर जाने के बाद उन्होंने हमारे को इस मुकाम तक पहुंचा दिया। आज यदि मैंने विश्व के सबसे ऊंचे शिखरों को छुआ, तो उसके बैक में मेरी माँ का योगदान है, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। और मैं ये कहती हूँ कि एक औरत वो पहली गुरु होती है जो बच्चों को शिक्षा देती है, जो बच्चों को चलना सिखाती है। और यदि औरत एक गुण को सुधार ले, वो गुण है, मैं हमेशा हर स्टेज पे कहती हूँ कि हमारे अंदर एक दूसरे को टांग खींचने की भावना है। मेरा ये मानना है कि मैं उसमें विश्वास करती हूँ कि हम एक दूसरे को जिताने का प्रयास करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की खुशी में शामिल हो, एक दूसरे की पदोन्नति से शामिल खुश हो। हम ये ना हो कि मेरे अंदर की वो कैसे प्रोग्रेस कर गई, वो कैसे इतने बड़े पद पे चली गई। ये हमारे अंदर एक जलनशील की भावना नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर एक खुशी का, हम उसको एंजॉय करें, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। यदि कोई महिला कमजोर है तो हम उसको आत्मविश्वास बढ़ाने में विश्वास रखें, ना कि उसको डाउन लेके आने में। मैं हमेशा जिताने में विश्वास रखती हूँ, ना कि हराने में। हमेशा मैं जहां भी होती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि शायद परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया है और इस काबिल बनाया है कि मैं समाज में कुछ दे पाऊं। सौभाग्यशाली हूँ कि परमात्मा ने मुझे इतना कुछ सौंपा है। रही सेल्फ डिफेंस की, मैं महिलाओं की बात करूं, एज ए पुलिस ऑफिसर होने के नाते जब मैं मेरे सामने बहुत सारे क्राइम आते हैं, और मैं उन क्राइमों को बड़े ध्यान से देखती हूँ कि शायद यहाँ से इसमें बचा जा सकता था। अगर कहीं भी आप खड़े हैं तो आपका खड़ा होने का मायने बहुत ऐसा रखता है कि बहुत सारी महिलाएं देखी है मैंने, तो खासकर वो महिलाएं जो अनपढ़ हैं, खासकर वो महिलाएं जो मतलब कि महिला के दिमाग में एक चीज होती है सीट लेने के लिए, कि वो ऐसा नर्वसता के साथ खड़ी हो जाती है, या फिर वो अपने आप को बीमार शो करती है कि कहीं सीट मिल जाए। मेरा ये मानना है कि आप अपने आप को इतने कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी करें ताकि क्राइम करने वाला पहले से ही आपसे डर जाए। आपके खड़े होने का जो स्टाइल है, वही बहुत सारे क्राइमों से आपको बचा देता है। बहुत सारी महिलाएं इतने लूज तरीके से खड़ी होती है कि वहां पर क्रिमिनल आदमी देख लेता है कि यहाँ क्राइम करना आसानी से संभव है। तो मेरा ये मानना है कि आप खड़े होने का, और बाजार में जब महिलाएं जाती हैं तो मैं तकरीबन देखती हूँ उनके जो पहनावा होता है, मैं इस पे नेगेटिव नहीं बोल रही, ना मैं किसी पहनावे के खिलाफ, लेकिन जब भीड़ भाड़ वाली जगह जाती है तो आपके पाँव में स्पोर्ट्स शूज होने चाहिए, आपकी ड्रेस ऐसी होनी चाहिए, अगर कोई आपके ऊपर फाइट कर रहा है या कोई ऐसा एक्सीडेंट होने वाला है या आप इतनी भीड़ भाड़ है, तो आप आसानी से उसका सामना कर पाए, भाग पाए, उसको पकड़ पाए। यानी इस एक्टिव मोड के अंदर आप रहना चाहिए, इतना भी नहीं खो जाना चाहिए। तकरीबन बाजारों की हालत यही होती है कि उनको पता ही नहीं होता आप कहाँ आ रहे हो, कैसे हो, किस हालात में खड़े हो, आपके आगे पीछे लोग कैसे हैं। थोड़ा सा देख के सचेत होके चलना चाहिए, जागरूक होके चलना चाहिए, ना कि आप सो करके आप कहीं पर भी जा रहे हैं। तो तकरीबन मैं देखती हूँ तो क्राइम जहां पर देखते हैं वही होता है जहां पर क्रिमिनल को लगता है कि यह क्राइम हो सकता है। बात रही आत्मरक्षा में, सेक्शन 100 दी गई है सीआरपीसी की, सेक्शन 96 से लेकर के 106 तक जो आत्मरक्षा की धाराएं दी गई है, आईपीसी को भी पढ़ना चाहिए। उसमें ये दिया गया है कि जहां पर आपको लग रहा है कि भाई सामने वाला आपको मार सकता है या आपको इतनी हानि पहुंचा सकता है, तो वहां हम आत्मरक्षा में इतना ही बल का प्रयोग कर सकते हैं ताकि वो हमारे ऊपर ऐसा वार ना करे। और यदि ये लग रहा है कि यहाँ पर
ये मार सकता है तो हम उसको बराबर में मार भी सकते हैं। उसमें दिए गए हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग ही आप आत्मरक्षा का प्रयोग कर सकती हैं। ये भी नहीं है कि हम किसी को नाजायज तरीके से उसका नुकसान पहुंचाए। तो बहुत सारी ऐसी पॉइंट है जहां पर मैं देखती हूँ कि वहां पर ज्यादातर मैं यही देखती हूँ कि हमारे महिलाओं का लूज पॉइंट ये होता है कि हम खुद एक्टिव मोड में नहीं चलती। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आप, अब मैं दिल्ली केस की ही बात आपसे करूंगी। जब आप रात को 10 बजे खड़े हैं तो आप उस बस में ये देखिएगा कि उस बस में कोई और व्यक्ति बैठा है या काफी सवारियां बैठी हैं, इसमें कोई महिलाएं बैठी हैं साथ में। यदि आपको 2-4 पुरुष दिख रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि गैर टाइम पे, उस टाइम पे आपका उस बस में, उस साधन में जाना बेकार बात है। रही बात हम इस चीज को कैसे बदला जा सकता है, तो जब तक हम अपने बच्चों के अंदर, मेरे पास ये अब छोटा बेबी बैठा है, मैं खुद अनमैरिड हूँ, लेकिन मेरे घर में जितने भी छोटे बच्चे हैं, खासकर लड़के, मैं उनको लड़कियों के बारे में एक एक चीज सिखाती हूँ अभी से। क्योंकि जब बच्चा बचपन से ही उन चीजों को सीखेगा तभी तो वो आगे जाके उसमें करेगा। मैं उनको अच्छे बुरे सब पॉइंट बताती हूँ कि बेटा यदि आप ऐसा करेंगे तो ये क्राइम होगा, पुलिस आपको ले जाएगी, आपका करियर बर्बाद हो जाएगा, अच्छा इंसान बनना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, अगर आप ये काम करोगे तो आप बुरे इंसान बनोगे, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आप फिर नशे में चले जाएंगे, डिप्रेशन में मतलब बहुत सारी छोटी छोटी बातें मैं इनके साथ शेयर करती हूँ। आज हमारे जितने भी बच्चे हैं सब 6 साल 7 साल के हैं, सभी को इन चीजों का पता है और घर आके सारी बातें बोलते कि मम्मा आज ये देखा था, मम्मा आज वहां पे ये चीज देखी थी, वहां पर आज ये ऐसा हुआ था, ये हुआ था, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब तक हम लड़कों के अंदर वो पॉइंट नहीं डालेंगे कि लड़कियों की इज्जत कैसे करनी चाहिए, लड़कियों के साथ कैसा पेश आना चाहिए, तो तब तक मुझे नहीं लगता कि माए ही मैन टीचर है इसमें। जब तक हम अपने बच्चों में बचपन से ये चीज नहीं डालेंगे तो कोई कितने सेमिनार कर लें, जब तक एक पेड़, जब हम धरती में, मैं किसान की बेटी हूँ, हम फसल उगाते हैं तो सबसे पहले हम खेत को तैयार करते हैं, उसमें अच्छे से हम खाद वगैरह डालते हैं और उसके बाद जमीन को तैयार करते हैं, फिर एक पौधा लगाते हैं और फिर पौधे की उसके बाद सारी परवरिश चलती है। जब एक छोटा सा अंकुरित होता है उसके बाद फिर उसकी देखभाल करते हैं, उसमें बहुत सारी खरपतवार, बहुत सारी पता नहीं क्या क्या उगाता है, फिर उसको उगाड़ते हैं, उसको जब टाइम लगता है उसको पौधा बढ़ने में। तो मेरा ये मानना है कि जब वो बड़ा होता है, वो फल देता है, तो उससे पहले उसको एक एक स्टेप पे काम करना पड़ता है। इसी तरीके से बच्चे हमारी प्रॉपर्टी है। खासकर मैं बात करती हूँ गाँव में और आज के दौर में। आज हम ना हम लड़कियों पे इतना काम कर रहे हैं, ना हम लड़कों पे इतना काम कर रहे हैं। मेरा ये मानना है आज हम लड़कियों को लेकर के काम कर रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक दिन हम ऐसा आएगा हमें लड़कों के लिए काम करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि हमने दोनों को बराबर लेके चलना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि हमें एक दूसरे के साथ कैसे काम करना चाहिए, एक दूसरे का कैसे सम्मान करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका क्या फायदा होगा, इसका क्या नुकसान होगा, आपका जीवन में क्या इसका महत्व है। आप इन चीजों को, इन पॉइंटों का, महिलाओं को सम्मान करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे तो आपको कैसा लगेगा। तो ये सारी चीजें जब बच्चे के अंदर डालते हैं कि आप अपनी माँ का सम्मान करेंगे, आप अपनी बहन को यदि गंदा देखना नहीं चाहते, उसके बारे में गंदा सुनना नहीं चाहते, तो आप दूसरे की बहन के बारे में क्यों गंदा बोलते हैं, उनके बारे में क्यों गंदा ऐसा वो करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमने ये बच्चों में बचपन से ही ये चीजें, ये शब्द उनके दिमाग में भरने पड़ेंगे। एक शिक्षा डिग्री लेने से नहीं है, एक ये नहीं कि मैं डॉक्टर की डिग्री ले ली। मेरा शिक्षित होने का मतलब यही है कि हम समाज में कैसे रहें, समाज का माहौल कैसा हो, क्योंकि जब तक माहौल अच्छा नहीं होगा तो तब तक कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता। वो एक सिर्फ आप पैसा कमा रहे नौकरी से, लेकिन आप एक अच्छे समाज में नहीं रह रहे हैं जब तक समाज का माहौल नहीं बदलेगा। और महिलाओं की मैं बात करूं तो महिला तो खुद बहुत सारी चीजों में, हालांकि मैं महिला को सबसे शक्तिशाली मानती हूँ। जब वो एक बच्चे को जन्म देके, एक इंसान को जन्म देके दूसरा जन्म लेती है तो उससे स्ट्रॉन्ग कौन हो सकता है। मैं तो उससे स्ट्रॉन्ग किसी को मानती नहीं हूँ। सुबह 4 बजे से लेकर के और रात को 12 बजे तक वो लगातार काम करती है। वो बुजुर्गों के लिए भी ध्यान रखती है, वो बच्चों का भी ध्यान रखती है, वो पूरे बाहर से आए हुए गेस्टों का भी ध्यान रखती है, वो परिवार के हर सदस्य का ध्यान रखती है। तो वो कहाँ से कमजोर हो सकती है। मैं तो उसको कभी कमजोर मानती ही नहीं हूँ। लेकिन हाँ, उसने खुद को जानना होगा कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। वो अपने आप को ही नहीं जान पाई है। अच्छी बात है कि हम कोमल हैं, इमोशनल हैं, ये महिला का गुण है। लेकिन जहां अपने अधिकारों की बात आ जाती है, हम बात करते हैं कि हम संसद में हमारे को सीट मिले, हम अपने घर में अधिकार नहीं ले पाए हैं,
हम रोडवेज की बस में चलते हैं, हम बस में हमारी सीट को नहीं, वैसे हम खड़े रहेंगे, हम कंडक्टर को नहीं बोल सकते कि ये रिजर्व सीट है, इतनी महिलाएं कि आप हमारे को सीट दे दीजिए। तो हम कैसे इतनी बड़ी संसद तक की बात फाइट कर पाएंगे? मेरा ये मानना है कि जब तक हम अपने बारे में नहीं जान पाएंगे तो हम वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। और यदि बात करें जिस भी महिला ने अपने आप को जगाया, तो वो देश की राष्ट्रपति भी रही है, वो हमारे देश की प्रधानमंत्री भी रही है, वो बड़े बड़े पदों को सुशोभित भी कर रही है। तो मेरा ये मानना है जितनी भी महिलाएं कामयाब है वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर के खासकर महिलाओं को जगाएं और ये जागरण करें, पॉजिटिव मोटिवेशनल प्रोग्राम करें, ताकि वो जाने कि आप उनकी शक्ति क्या है और उनके जागने से देश में क्या होगा। हम कह रहे कि हिंदुस्तान अमेरिका जैसा बने, तब तक नहीं बन सकता जब तक महिलाएं आगे नहीं आएंगी। हम महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देंगे तब तक देश प्रगति नहीं कर सकता। तो खुद सबसे बड़ा सेल्फ डिफेंस खुद का होता है। और मैं तो हरियाणा में जन्मी हूँ, मैंने तो सेल्फ डिफेंस की कभी कभी क्लास लगाई नहीं। मैं तो स्कूल में इतने बालक पीटे हैं, मेरे घर वाले परेशान होते थे जब मैं पीट के आती। तो मेरे को कभी किसी लड़के ने कुछ कह दिया तो मैं इतना छेद के आती थी, 10 व्यक्ति और साथ देना शुरू कर देते थे। ऐसी बात नहीं है, देखो क्राइम होता है, कुछ नशेड़ी आदमी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं क्रिमिनल आदमी, हर जगह मिल जाएंगे वो। लेकिन तकरीबन यदि आप स्ट्रॉन्ग है तो आपके साथ देने वाले भी हैं। मैं भरी बस में पीट देती थी हमेशा ही, मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस शुरू से ही था। ये मेरे पेरेंट्स ने दिया, ये मेरे फादर ने हमेशा मुझे, जब तक 12 साल तक वो मेरे साथ रहे, तो मेरे फादर ने सिखाया कि भाई आप बाहर निकले तो अगर आपके ऊपर कोई वार कर रहा है तो उसको आप बराबर पीट के आए। तो ये चीज मुझे बचपन से ही घर में मिली है और आपस में हम बहन भाई भी बहुत फाइट करते थे। और मेरी मदर ने भी ये चीज सिखाई कि कभी भी औरत कमजोर नहीं होती, औरत के बहुत सारे रूप होते हैं, देवियों के इतने रूप बताए गए हैं, भारत माता लिखा गया है। ये मेरी मदर अनपढ़ थी लेकिन उन्होंने मुझे ये कॉन्फिडेंस की बात मेरे अंदर भरी है और उसी कॉन्फिडेंस की बदौलत मैं इतनी अचीवमेंट प्राप्त कर पाई हूँ। और वही चीज मुझे आज भी काम आता है। मैं पुलिस में भर्ती होने का भी मेरा यही काम था कि मैं पुलिस में एक ऑफिसर भर्ती होकर मैं देश की रक्षा करूंगी, मैं लोगों को सपोर्ट करूंगी। और सिर्फ महिला ही नहीं है, पुरुषों को भी आत्मरक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत जगह ऐसा देखती हूँ मैं, पुरुष भी अपनी रक्षा नहीं कर पाते। तो मेरा ये मानना है कि जब तक आदमी खुद के लिए खुद सचेत नहीं होगा, खुद फाइटर नहीं बनेगा, अपने रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। पुलिस के हर जगह पे नंबर लिखे होते हैं और मेरे हरियाणा में तो हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा काम कर दिया है। अभी 112 नंबर से एक गाड़ी शुरू कर दी है। अगर कोई भी महिला 112 डायल करती है तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर पुलिस घटनास्थल पे पहुंच जाती है। 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट भी नहीं लगता है। 5 मिनट में आप अपने 1 मिनट से डायल कीजिए, आप मिस कॉल भी लग जाती है तो वही लोकेशन पहुंच जाती है और तुरंत पुलिस वहां पे पहुंच जाती है। तो आपके पास पुलिस के नंबर भी होने चाहिए और खुद भी आप सचेत होके चलिए। और आपका पहनावा, आपका सबसे मेन चीज है ये कि आप जब क्या पहन रहे हैं वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। और दूसरा व्यक्ति भी तभी आक्रमण करता है, तभी आपके ऊपर प्रहार करता है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को पहचान लेता है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग दिखती है तो कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर वार नहीं करता, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मैं बचपन से ही बाहर निकली हूँ और मैंने सारा स्ट्रगल अपने जीवन का 13 साल की, तब मैं थी 13 साल की, बहुत छोटी सी बच्ची होती है। तो मेरे फादर एक्सपायर होने के बाद मेरे फादर के 13 दिन के बाद मेरी शादी की तैयारी कर दी थी। तो उससे भी मैंने खुद फाइट किया कि कैसे बचपन में अपनी शादी को रोकते हैं। और उसके बाद परिवार से भी लड़ी क्योंकि फादर के जाने के बाद बहुत सारे चाचे ताऊ परिवार के लोगों का इतना प्रेशर होता है। आप हरियाणा में और खासकर मेरे समाज में, जाट समाज में जहाँ से मैं आती हूँ, तो वहां पर बहुत ही एक ऐसा प्रभाव होता है कि लड़की का निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन आप अपने अंदर वो विश्वास पैदा कीजिए। और मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगल भरी रही है, लेकिन मुझे कोई भी पुरुष ऐसा नहीं मिला कि जो मेरे ऊपर अटैक कर पाया हो, क्योंकि मैंने वो चीज, वो कॉन्फिडेंस मुझे आज भी है। थोड़ा सा मैं टाइम को भी देख के चलती हूँ। अगर मेरे यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है तो हमने टाइम को देख करके भी चलना चाहिए। थोड़ा सा ये देख लेना चाहिए कि अब नाइट में निकलना चाहिए या न निकलना चाहिए। क्योंकि जैसे दिल्ली जैसे शहर में है तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि हम आराम से आ भी जा सकते हैं, लेकिन
कुछ ऐसे कस्बे हैं जहां पर हमारा जाना उस टाइम पे कुछ लोग नशे में होते हैं, कुछ लोग वैसे मिल जाते, क्रिमिनल टाइम मिल जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि टाइम को देख के भी चलना चाहिए। मैं हमेशा टाइम को देख के भी चलती हूँ। तो छोटे छोटे पॉइंट है, उनका ध्यान रखें। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी ने इतना मान सम्मान दिया और मुझे सुना। और माफी चाहूंगी मैं, क्योंकि मेरा मन था कि मैं बहुत और अच्छा बोल पाती, लेकिन मैं 2-3 दिन से फीवर में हूँ और मैं चाह रही थी कि मेरी एब्सेंट ना लगे आपके बीच में, मैं आपके साथ बातचीत कर पाऊं। और मेरे से कोई गलती हुई, कोई शब्द ऐसा निकला तो उसके लिए माफी चाहूंगी। अनीता जी, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। नहीं जूलिया जी, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ कड़वी बातें रह गई है। हालांकि मेरा आज मेरी तबीयत इतनी वो नहीं थी। हमें आज भी, मैं तो औरतों को ये कहती हूँ कि सास कहती है सैनिटरी पैड यूज पैसे खराब कर रही है, घर में दारू पी रहा है हस्बैंड, नशा कर रहा है, उसके ऊपर सास नहीं बोलेगी, वो उसका बेटा, लेकिन वो सैनिटरी पैड के लिए उसके साथ लड़ाई करेगी। तो कहीं ना कहीं सास चाहती है कि जो आजादी बहू को मिल रही है वो मुझे नहीं मिली, तो इसको भी नहीं मिलनी चाहिए। वो नेगेटिव सोच है। तो तब तक हम फाइट नहीं करेंगे। That's true. आपके इस आत्मविश्वास पे मैं 2 लाइनें आपको कहना चाहूंगी, जो आपके लिए और हमारी सारी जितनी महिलाएं आज जुड़ी हुई हैं यहाँ पर। सफलता सबको चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन वन इम्पॉर्टेंट की टू सक्सेस इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास कहाँ से आता है? तैयारी से आता है। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस सेल्फ कॉन्फिडेंस। और जैसे आपने किया है अनीता जी, आपने अपनी क्षमता को पहचाना और आपने उस पर विश्वास करके अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाया और उससे आप एक बेहतर दुनिया बना रहे हो। So friends, with realization of one's own potential and self-confidence in one's ability, one can build a better world, and that's what our group is doing. और यही हमारा ग्रुप कर रहा है कि हम सारी औरतें अपनी पोटेंशियल पहचाने। अगर हम कहीं पे वीक है, मेरे अंदर भी कमियां हैं, मैं आपसे, अपने ग्रुप की फ्रेंड से इतना सीखती हूँ। फिर हमारा ग्रुप 1 साल पहले बना था और मैंने उस 1 साल में इतना सीखा है अपनी हर एक फ्रेंड से। यहाँ पे इतनी एक्टिव है। उससे पहले मैं सोचती थी कि मैं ही बहुत काम करती हूँ, मैं ही बहुत एक्टिव हूँ, और लेकिन यहाँ देख के तो मैं हैरान हूँ। ये घर भी चलाती है, अपना बिजनेस भी करती है, बच्चे भी हैंडल करती है और रोटरी का काम भी करती है। रोटरी सोशल सर्विस है जो आई डोंट थिंक सो मैं इतना काम करती हूँ जितनी हर एक महिला जो यहाँ बैठी हुई है वो काम करती है। सो यही सबसे बड़ा सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट का यहाँ एग्जाम्पल है। सॉरी फ्रेंड, सशक्तिकरण। ये हमारा सबसे बड़ा उदाहरण। आप आज आए हैं हमारी मीटिंग में अनीता जी, आपने हमें इंस्पायर कर दिया। और हाँ, हर एक औरत के जीवन में तकलीफें रही हैं, हर इंसान की जिंदगी में रहती है, चाहे वो औरत हो या आदमी हो। जूलिया जी, जब तक आपके जीवन में बाधाएं नहीं आएगी तो समझ लीजिए आप अच्छे रास्ते पे नहीं है। सही बात है, सही बोला आपने। हमें पर वहाँ एक चीज हम औरतों को, हम इंसान को याद रखने की, हमें उन बाधाओं से डर के पीछे नहीं बैठना है। आपने जैसे शुरू में बोला था कि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं औरतें, हमें वो नहीं होना है। हमने अपनी अंदर की जो हम कहते हैं दुर्गा, काली, इस सबको निकालना है और हमें सही समय पे सही रूप का यूज करना है। तो उससे हम अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं, दूसरी औरत को हम एम्पावर कर सकते हैं, सशक्तिकरण बना सकते हैं। और हमारी इस महिला सशक्तिकरण सीरीज का पर्पस भी यही है आज का। सबसे पहले आज हमारा सीरीज है सेल्फ डिफेंस। सो फ्रेंड्स, सेल्फ डिफेंस हम लोगों ने इसलिए ज्वाइन किया, जैसे अनीता जी ने बताया, दिस इज वेल सेड कि आप जिस माहौल में जा रहे हैं वैसा ही आप ड्रेसअप होइए, वैसे ही शूज पहनिए। आप खुद ही देख लीजिए, अगर आप वो सब्जी लेने जा रहे हो भीड़ बाजार में, आपने हील्स पहन ली, घर जाके आप खाना भी नहीं बना पाओगे क्योंकि आपके पैर दर्द हो रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वैसे जूलिया जी, कंपनियों ने बना दिए हैं ये प्रोडक्ट, लेकिन मैं आपको बता दूं, जितनी भी हमारी महिलाओं की हिप्स निकलती हैं साइड में, ये जूतों का मेन कारण है। अगर आप स्पोर्ट्स शूज डालते हैं तो आपकी हिप्स नहीं निकलेगी। ये फिजिकली भी ये पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है।
That's true, that's true. और जैसे हम जैसे आज के वर्ड में रह रहे हैं, हम जितनी भी हम सारी एम्पावर्ड वुमेन है अपने एंड पे, और लेकिन हम पार्टीज में जा रहे हैं। अनीता जी, आपसे मेरे 2-3 क्वेश्चन, आपने दो कुछ टिप्स दे दिए हैं कि कपड़ों को देखें और रात को अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं किस तरह का यूज करें, आपने ये बताया, और आपने बल्ब यूज करना बताया। इस पे फ्रेंड्स, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है आपके अपने लिए, आपकी डॉटर इन लॉ, आपकी बेटी, या आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी रोट्रैक्टर्स, इंट्रैक्टर गर्ल्स है, या किसी के लिए कोई टिप चाहिए, प्लीज चैट बॉक्स में डाल दो या रेज हैंड कर लो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। उससे पहले 2 क्वेश्चन अनीता जी, आपने कहा बल्ब यूज कर सकते हैं, बल्ब यूज करने के लिए वही सबसे पहले हमें एक आत्मविश्वास की जरूरत है, राइट? हम लोग डर जाते हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा। यस, वो नहीं सोचना है, आपको अपने आप को बचाना है। तो हम कितना बल का उपयोग कर सकते हैं वहां पर कि जिससे हमें जेल ना हो या वो आदमी मरे ना, कितना बल का उपयोग करना चाहिए? देखिए, आपको वहां पर लग रहा है कि आपके साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है कि जहां पर आपकी जान जा सकती है, या आपका रेप हो सकता है, आपके साथ कोई भी ऐसा हीनियस क्राइम हो सकता है, तो उस समय में आप अगले की हत्या तक भी कर सकती हैं। पुलिस ये लीगल कहाँ जाएगा अगर हमने उसको हत्या ये कर? आप आईपीसी की सेक्शन 100 जब पढ़ेंगे, आईपीसी की सेक्शन 96 से लेकर के 106 तक पढ़ेंगे, तो आपको ये आपके मामले में और प्रॉपर्टी के मामले में ये आपको अधिकार मिलेंगे। यदि आपके घर पे कोई रात को अटैक हो गया और आप अकेले हैं, आपकी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, तब भी आप वो वार कर सकते हैं, उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। अगर उसमें मौत भी हो जाती है तो ये आपके उसमें नहीं है कि भाई आपको पुलिस गिरफ्तार करेगी। वहां पर आपने अपने सेल्फ उसके लिए वो वार किया है, ना कि आप किसी को मार रहे हैं। अगर आप कहीं मार्केट में है, बाजार में है, या कोई आपको मारने आ गया है, या आपके साथ कोई बलात्कार हो रहा है, तो तब आप उन सेक्शनों को पढ़िएगा। वो अधिकार आपके पास है कि आप उनके ऊपर वो अटैक कर सकते हैं, चाहे उसमें उसकी मौत भी हो जाए, क्योंकि हमारी जान जा रही है तो हम अपनी सेल्फ उसके लिए कर रहे हैं। तो वहां पर कोई भी नहीं है, वहां पर छूट दी गई है। Welcome friend from Nigeria. Pearl, we are talking in Hindi. I'm afraid if you unable to understand or anything. We are talking on self-defense and how one woman or a girl can protect herself, and what tips we can use to protect ourselves before any attack. Because ये सही बोला जाता है कि हम औरतें इनवाइट करती हैं, चाहे घर पे खतरा हो चाहे पब्लिक प्लेस पे हो, हमारे अपने आचरण से हमारे अपने जैसे आपने एक और बोला, खड़ा होने का स्टाइल, चलने का स्टाइल। मुझे अपना भी याद है जब मैं खुद छोटी सी, मतलब जो स्कूल गोइंग थी, राइट, उस टाइम पे मेरा चलने का स्टाइल और आज की डेट पे चलने का स्टाइल टोटली डिफरेंस है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया है और आज हम डिपेंडेंट नहीं है। हमें पता है अगर उसने कुछ देखा तो उसको हम पीट सकते हैं। आज जूलिया जी, सबसे कमजोरी का पॉइंट है कि ओवर एक्टिंग करना। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां ओवर एक्टिंग करती हैं, फिर उसका शिकार होती हैं। ये हमारी कमजोर, वो खूबी मानती है, मैं उसको कमजोरी मानती हूँ। सही बात। मैं तो उस चीज को भी कमजोरी मानती हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी या पुलिस में मेरी फ्रेंड्स होती, वो कहती मेरे ऊपर किसी ने ऑफर मारा। मैंने कहा ये क्या मतलब है? वो खुश होती कि मेरे ऊपर ऑफर मारा। मैं कहती हूँ ये हमारी कमजोरी है, ये खूबी नहीं है। आपके ऊपर किसी ने ऑफर मार दिया, ये नेगेटिव पॉइंट है, ना कि पॉजिटिव पॉइंट है। किसी की हिम्मत क्या है कि हाँ ठीक है, हम बैठे हैं मीटिंग में, हम दोस्त हैं या कोई और है, आपकी तारीफ अलग चीज है, ऑफर मारना अलग चीज है। तो अगर कोई आपके ऊपर ऑफर मार रहा है तो आपका नेगेटिव पॉइंट है, तो उससे समझ लेना चाहिए कि ये क्राइम होने की स्टार्टिंग हो गई है यहाँ से। सही बात। तो ये चीजें हमें लड़कियों में, खासकर जब कॉलेज की स्टूडेंट है, जो महिलाएं बाहर जाती, तो वो ओवर एक्टिंग करती है, तब जाके उसका शिकार होती है। जिन चीजों पे काम करना चाहिए उस चीज के ऊपर, उन पॉइंटों पे काम नहीं करती। कॉन्फिडेंस से चले हम क्यों ऐसा बने कि पुरुष हमारे को उसी चीज को देख के प्रभावित हो। पुरुष प्रभावित हो तो हमारे काम से प्रभावित हो, हमारे कॉन्फिडेंस से प्रभावित हो, हमारी जो अचीवमेंट है, हमारा जो रहने का, सहने का, चलने का, बैठने का ढंग है, उससे प्रभावित हो। हमारी सुंदरता तो हमारे काम के अंदर है। नहीं, सही बोले आप अनीता जी। और इसमें आप मुझे एक टिप और दीजिए हमारी बाकी महिलाओं के लिए भी, कि जब कोई, जैसे हमने बताया हम आज की नारियां हैं, हम लोग काम पे जा रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, कई बार कई औरतें अकेली वापस आ रही होती है,
राइट, खुद भी ड्राइव कर रही होती हैं। तो ऐसी औरतों के लिए आप क्या टिप्स देंगे कि अगर सपोज एक पुलिस वाला अगर रोकता है तब तो डर लगता है पुलिस वाला, लेकिन अगर वो पुलिस की वर्दी पहना हुआ है और क्रिमिनल है, जनरली कहा जाता है कि रात को आप आ रहे हो, कोई भी आ जाए उड़ा दो उसे, राइट। लेकिन वो टिप और अभी वाली टिप ये जो है कि अगर आपकी गाड़ी पुलिस वाला रोकता है और वो क्रिमिनल है यूनिफॉर्म के पीछे, उससे कैसे निपटा जाए? मैं रात को अपनी गाड़ी से राष्ट्रपति भी खड़ा हो तब भी नहीं रोकती। गुड। ये आप यदि रात को निकल रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, आपको बहुत सारी लेडीज भी हाथ देंगी, लेडीज की ड्रेस में, लेडीज हाँ। होंगी, लेडीज भी क्राइम कर रही हैं, लेडीज खुद इन्वॉल्व हैं। लेडीज निकलेगी, वो हाथ करेगी, हम सोचते यार लेडीज है बिठा ले, कोई कभी बुजुर्ग महिला आएगी, कभी वैसे कोई बुजुर्ग पुरुष आएगा। मेरा एक ही फंडा है लाइफ में, मैं कभी भी रात को गाड़ी नहीं रोकती, चाहे कोई भी हो। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। यस, मैं वहां पर गाड़ी रोकती हूँ जहां पर मुझे लगता है कि यहाँ सुरक्षित है या कोई क्राइम नहीं होगा, यहाँ पर मैंने पानी पीना है या खाना खाना है या वॉशरूम जाना है। मैं सुनसान जगह पे कहीं भी अपनी गाड़ी नहीं रोकती, चाहे कितना भी प्रॉब्लम हो। मुझे लग रहा है कि हाँ, क्योंकि पता चल जाता है, मुझे लग रहा है कि हाँ वास्तव में यहाँ पर मेरी हेल्प की जरूरत है, मुझे वो करना चाहिए, मैं निर्णय ले लेती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तो मैं कभी भी अपनी गाड़ी नहीं रोकती। मैं अपनी सहूलियत के साथ चलती हूँ और मेरा लगभग रात का ही विजिट रहता है, मैं रात को बहुत चलती हूँ। मेरे साथ आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, हजारों मिलते हैं लेकिन मैं अपनी गाड़ी रोकती नहीं है, मैं अपनी गाड़ी को उस पे चलाती हूँ। और कोई भी व्यक्ति दिखता है तो मैं कभी भी नहीं, चाहे कोई हाथ दे या खड़ा रहे, कुछ भी हो चाहे, लेकिन मैं रात को गाड़ी नहीं रोकूंगी, क्योंकि रात को हम हेल्प ही नहीं ले सकते किसी की। सो यानी कि अभी हम बाकी महिलाओं पे छोड़ के मैं आप ही के पास वापस आती हूँ। आप वर्किंग है, आपकी रात को शिफ्ट लगती है, आपने तो उस पे हम कह सकते हैं हमारा इंडिया जो है कंपेयर टू दूसरे देशों से, दूसरों के मुताबिक हमारा देश काफी सेफ है इस मामले में। देखिए बाकी देशों में जैसे मैं गई हूँ अदर कंट्री, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूरोप में जब मैं थी तो मैं रात को 1 बजे भी अकेली बहुत विजिट करके आई हूँ, अकेली घूम के आई हूँ, पूरा यूरोप देखे 1 बजे तक 2 बजे तक। अदर कंट्री को देखते हुए हम बहुत पीछे हैं, हम सेफ नहीं है। अदर कंट्री जब मैंने घूमा तो मैंने अपनी कंट्री से बहुत सारी चीजें देखी कि मेरी कंट्री में कुछ भी रूल नहीं लगते मुझे आज भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लूज पॉइंट है जहां पर कि बहुत ज्यादा क्राइम होता है या फिर क्रिमिनल के साथ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। कुछ जो खुद सर्विस में होते हैं वो भी क्रिमिनल के साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो मेरा ये मानना है अपनी कंट्री में तो भगवान रुखाड़ी, हम खुद ही खुद के रुखाड़ी है, दूसरा कोई आपकी सेफ्टी नहीं कर सकता। इस पे मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि अभी मैं पीछे कुछ बुक्स पढ़ रही थी अपने इस सब्जेक्ट के लिए ही, और कुछ फ्रेंड से मेरी बात हुई, यूनाइटेड स्टेट्स है, साउथ अमेरिका है, वहां पर हम तो जैसे काम करके आप रात को वापस आ रहे हो अकेले गाड़ी में, हम लोगों से काफी लोग होते हैं ऐसे, राइट। वहां पर अगर कोई औरत 12 बजे के बाद अकेली कहीं से आ रही है, उसके ऊपर अटैक होता है, 100% अटैक होता है उसके ऊपर। देखिए मैंने जितना जहां मैं विजिट किया, मैं अलास्का गई हूँ, मैं दक्षिण अमेरिका गई हूँ और मैं अफ्रीका गई हूँ। कुछ कंट्रीज में जहां मैं गई हूँ मैंने देखा, यूरोप है, यूरोप तो बहुत ही अच्छी जगह है। देखिए मेरे साथ जितने भी वहां पर मेरे लोगों से मिलना हुआ, मेरे साथ क्लाइंबर थे, मेरे साथ फॉरेनर लोग थे जितने भी, और जितना मैंने वहां पर देखा यूरोप के अंदर, यूरोप में हाँ ये तो है नहीं कोई कंट्री बिना क्राइम किए होगी, लेकिन ये है कि वहां पर महिलाएं मुझे आजाद फील दिखी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जहां रुकी मैंने पूछा नाइट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे ज्यादा सुरक्षित मैं नेपाल में फील करती हूँ। सबसे गरीब देश कहते हैं कि गरीब देश है, मतलब नेपाल में वो आर्थिक वो नहीं, लेकिन नेपाल एक ऐसी कंट्री है जहाँ मेरा क्लाइंबिंग का ज्यादा रहता है और मेरा जाना सबसे ज्यादा नेपाल में होता है। तो नेपाल में आप आधी रात को भी जा रहे हैं, आप पूरी रात को वर्क कीजिएगा, आपको कोई भी व्यक्ति कभी भी ऐसे नजरिए से भी नहीं देखेगा कि आपको लगेगा, ऐसे लगेगा कि मैं घर में फैमिली में मार्केट में जैसे घूमोगे ऐसे लग रहा है कि मैं फैमिली में घूम रही हूँ। तो नेपाल एक ऐसी कंट्री देखी मैंने जहाँ बिल्कुल ही बदलाव दिखा कि वो लोग हमारे से कई साल आगे हैं। तो खास बात करें अपनी कंट्री में, खुद भी मेरे को भी कई बार बहुत बारी, मैं एज ए पुलिस ऑफिसर हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मुझे भी डर लगता है। और मेरा ये मानना है वहां पर हमारा IQ लेवल ही हमारे को सेफ्टी दिलाएगा। हम खुद देखें कि या क्या इस सिचुएशन में मुझे कैसे निकलना चाहिए, क्या अब रात को निकलना चाहिए या ना निकल। देखिए वर्दी में भी मैं रात को बड़ा देख के निकलती हूँ, क्योंकि वर्दी एक कपड़ा है,
वो मेरी ठीक है, वो एक ड्रेस है मेरी उसकी डिपार्टमेंट की, लेकिन जब कोई अपराध करेगा तो वो मेरी आत्मरक्षा नहीं कर पाएगी। कपड़ा है वो तो फट जाएगा ना। कोई तब क्राइम करता तो कोई ये नहीं देखता कि स्टार कंधे पे लगे हुए हैं, ये लगे हुए, उसको ये कि एक लड़की है। तो वहां पर मुझे ये देखना चाहिए कि इस टाइम मुझे निकलना है कि या नहीं निकलना है। निकलना है तो मेरे साथ एक दो कोई साथ में सपोर्टर जरूर होना चाहिए, चाहे लड़का कोई आपका दोस्त है या कोई घर में आपका ब्रदर है या आपके साथ जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं वहां पे कोई आपका गार्ड है, कोई भी है आपके साथ तो जरूर होना चाहिए। आप अकेले ना जाए रात को, मेरा ये मानना है, क्योंकि महिला 4 बंदों के सामने स्ट्रॉन्ग नहीं है। देखिए जहां पर 4 व्यक्ति आपको अगर पकड़ लेते हैं वहां पर महिला स्ट्रॉन्ग नहीं है। वहां उन्होंने दिमाग से काम लेना चाहिए, वहां उनको ब्लैकमेल करके काम लेना चाहिए। वहां पर अगर महिला कोई ऐसे उसमें फंस जाती है तो मेरा ये मानना है, मैं खुद ये कह रही हूँ कि वहां पर उसको एक बारी तरीके से उनको हैंडल कर लेना चाहिए और उनको विश्वास में ले लेना चाहिए, इमोशनल ब्लैकमेल में, कि हाँ मैं आपको सपोर्ट करूंगी, मैं आप मुझे अच्छे लगे, ये वो मतलब। और पुरुष ऐसा बुद्धू है, वो बिल्कुल बहला जाता है इस चीज में और तुरंत अपने इक्विपमेंट का प्रयोग करे तरीके सर, वॉशरूम में जाके मैं आपका सपोर्ट करूंगी, मैं आपके साथ बिल्कुल जो वो कहे वही डिमांड करूंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। 10-15 मिनट में कॉन्फिडेंस बना के उनको फ्रेंडली बना ले और एकांत में जाकर के कहीं भी आपके फोन का प्रयोग कीजिए, आपके पास हथियार है तो आप क्राइम से बच पाएंगे। टाइम बाइंग जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, बाय टाइम। ऐसे सिचुएशन में अगर हम फंस जाते हैं और थोड़ी नर्वसनेस होती है, लेकिन अपने आप को कॉन्फिडेंस करके, अपने आप को मजबूत करके बाय टाइम करिए कि आप अपने लिए सपोर्ट मंगा सके उस पे। यस यस। जसबीर जी आपका क्वेश्चन है। या गुड इवनिंग एवरीवन। मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के, आप बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दे रहे हैं सभी को। मैं जस्ट एक बात शेयर करना चाहूंगी और इसका सॉल्यूशन मांगना चाहूंगी। एक्चुअली ये केस मेरे बड़ी बेटी के साथ हुआ लास्ट वीक। वो जलंधर में जॉब करती है, जॉब करके वो 6 बजे के करीब वापस आ रही थी अपना ऑफिस से, रिक्शा में थी। सो 2 लड़कों ने उसके बैग पुल करने की, खींचने की कोशिश की। तो उसका जो पुली बैग है वो पीछे पिट्ठू बैग है वो पहनी हुई थी, तो उन लोग खींच नहीं पाए जल्दी। खींचते हुए ले गए, उसे भी चोट लगी, रिक्शे वाले को भी चोट लगी। बट मेरा ये कहना है कि चलो थोड़े सा वहां पर शाम जल्दी हो जाती है। हुआ ये केस, ऑलरेडी 1 हफ्ते से वहां पर चोरियां हो रही थी। पुलिस में कंप्लेन की गई तो पुलिस वालों ने भी कोई एक्शन नहीं लिया और आज तक टोटल 17 ऐसे चोरियां हो गई, लड़कियों को छेड़खानी की गई बहुत गंदे तरीके से उस एरिया में। बट कोई भी पुलिस वाले ने कंप्लेन लेने के बावजूद आकर के बस अच्छा आपके साथ में हो गया ओके और चले गए, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा। ऐसे में क्या किया जाए? देखिए आप ऐसे में आप थाने में गए हैं या आप कोई पुलिस वाला आपके पास आया है, उसके ऊपर आपके पास सीनियर ऑफिसर बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट में एसपी बैठे हैं, डीएसपी बैठे हैं, आईजी बैठे हैं। तो आप अपनी कंप्लेंट को, अगर वहां सुनवाई नहीं हो रही है, आजकल तो ट्विटर आ गया है, आजकल तो आप मेल से आप सीनियर अधिकारी को मेल आईडी डली हुई है, आप मेल से अपनी शिकायत वहां भेज सकते हैं और कोई दूर भी नहीं है, एसपी ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो आप एसपी से मिलिएगा, आपकी समस्या का बिल्कुल समाधान होगा। हाँ ठीक है, कुछ लोग हैं ऐसे जो कि कार्रवाई नहीं करते हैं, हर तरह के हैं, समाज से आए हुए लोग हैं, वे कहीं बाहर से नहीं है, हम लोगों में से ही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुलिस में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, वो समाज की सेवा करना चाहते हैं, समाज के हक में काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका अपना काम करने का एक नेगेटिव तरीका भी होता है। तो आप अगर आपको वहाँ हेल्प नहीं मिल रही तो आप सीनियर ऑफिसर से मिलिए, वहां के डीएसपी से मिलिए, एसपी से मिलिए और बिल्कुल समाधान होगा। जब आप सीनियर ऑफिसर से मिलेंगे तो वो बिल्कुल उस समस्या का समाधान करवाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू जसबीर जी। फ्रेंड्स किसी और को कोई क्वेश्चन? बट यस जरूर पढ़िएगा, सेक्शंस गूगल करिए, आजकल तो गूगल जी हमारे साथ हैं 24 घंटे। हाँ जुलिया जी, बहुत सारी अमेंडमेंट आ रही है, महिलाओं के हक में भी आ रही है, लेकिन मैं एक और आपसे प्रेयर करूंगी इस मामले में कि महिलाएं जो कानून हमने मिले हैं, जो अधिकार हमने मिले हैं, जो कानून हमारी सेफ्टी में बने हैं, उनका मिसयूज ना करें, क्योंकि जो हकीकत में पीड़ित है उसको न्याय नहीं मिल पाता, फिर सभी लोग उसी नजरिए से देखने लग जाते हैं।
तो मेरा ये मानना है कि हम हमारे को जो अधिकार दिए गए हैं, जो कानून हमारी सेफ्टी के लिए बने हैं, उनको हम अच्छे से वो करें ताकि हमारा आत्मसम्मान बना रहे। जब कोई महिला ऐसा काम करती है तो मुझे अपने आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचती है, क्योंकि महिला देने वाली है ना कि लेने वाली। बढ़िया परमात्मा ने उसको माँ का रूप दिया है, और माँ हमेशा, और आपको पता ही है, महिला तो सृष्टि को रचने वाली है। तो मेरा ये मानना है कि इतने तुच्छ और इतने छोटे कार्य महिला ने नहीं करने चाहिए। That's true. सही बोला अनीता जी ने। हमें जो राइट्स मिले हैं, the rights that we have got it, we should use it very well. So अंजू जी, हमारे जिन्होंने आपका इंट्रोडक्शन दिया, अनीता जी, और हमारी वीरी लिटरेसी ग्रुप की हमारी कमेटी मेंबर भी हैं, इनका क्वेश्चन है आपके लिए। जी अनीता जी, ये एक तो आपने जो बोला, दिस इज रियली इंस्पायरिंग, और कुछ तो मैं भी स्ट्रांग थी। शादी के बाद शायद मेरा वो कॉन्फिडेंस कम हो गया, बिकॉज I got married, it was like, you know, I had in-laws to cater to and all. But उसके पहले, शादी के पहले तो ये थोड़ा मेरे में भी आदत थी कि जब मैं कहीं जाती थी, अगर कोई छेड़ता था तो फिर मैं उसको छोड़ती नहीं थी। मैं भी पिटाई अच्छे से करके आती थी। तो मैं जब हॉस्टल में भी थी, तो जब फ्रेंड्स के साथ जाती थी तो सब बोलते थे अंजू को आगे रखो ताकि हम लोग सेफली पीछे चलते जाएं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, आई जस्ट वांट, एक मैं आपसे बात पूछना चाहती थी। मेरा बेटा अभी एक इस पे जा रहा है, ट्रैक पे जा रहा है, ये इंडिया हाइक्स कोई उसके साथ जा रहा है। 6 डेज का ट्रैक है क्वारी पास में। तो मेरे को थोड़ी एंजाइटी है कि ये कितना सेफ है इंडिया हाइक्स वालों का पास, क्योंकि बेटा जा रहा है, थोड़ी सी घबराहट होती है। तो आप थी तो मैंने कहा ये आपसे एक बार पूछ लूं ताकि थोड़ा मुझे इंडिया हाइक की मैं सारा देख के पता करके आपको बता देती हूँ, और देख लेती हूँ मैं एक बारी। फिर उसके बाद में आपको जुलिया जी के पास नंबर है, आप मेरे पास नंबर, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं उनसे बात भी कर लूंगी। आप बिल्कुल फ्री रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी जी जी, थैंक यू अंजू जी। फ्रेंड्स, समय आ गया है अनीता जी से और आप सब से विदा लेने का। पर सही में ये बहुत अच्छा रहा, और अनीता जी के साथ जुड़ के हम बहुत सारी उनके इलाके की औरतों को हम सशक्तिकरण करने जा रहे हैं। और हम अनीता जी को बुलाते रहेंगे अपने इस वुमेन एम्पावरमेंट सीरीज में, जिससे हम भी इंस्पायर होते रहें और जो भी क्वेश्चन हो हम इससे पूछ सके। फ्रेंड्स, ऑन दिस लास्ट सेइंग, define success for every woman. That's very important. Define success on your own terms. Achieve it by your own rules and build a life you are proud to live. हम तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक, this is another Hindi one. अनीता जी, जो आपने अभी बताया था कि हम कई औरतें ऐसी हैं जो गांव में एम्पावरमेंट तब तक नहीं ला सकते कंप्लीटली जब तक हम में से आधों को वापस लिया जाता रहेगा, और या हम उनको आगे आने का मौका नहीं देंगे। यस हिमाली जी, मुझे सिर्फ एक यही पूछना है अनीता जी से कि जैसे आपने बताया ना कि बहुत सारे सेक्शंस वगैरह है, पर मुझे ऐसा जानना है कि अगर हम क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं, किस तरह से लोगों तक ये सेक्शंस और ये अवेयरनेस हम लोग उनको ज्यादा से ज्यादा, अभी जैसे गांव वगैरह में है तो वहां इतना इंटरनेट और गूगल वगैरह लोग सर्च करके पढ़ते नहीं है, तो क्या हम ऐसा कुछ टिप्स दे सकते हैं या ऐसे कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं कि जो हम लोग ये राइट्स है और हम लोग वो सारे लेडीज में हम लोग घुमाए, उसको पहुंचाए, जितना जहां तक हो सके हम लोग उनको पहुंचाने की कोशिश करें। देखिए, मेरा ये मानना है कि हमने कुछ टाइम निकालना होगा कि सप्ताह में निकाल लें या फिर 15 डेज में या फिर 1 मंथ में, कि हम गांव टू गांव हम थोड़ा बहुत विजिट वर्क कर पाए। क्योंकि अगर मैं बात हरियाणा की करूं तो लगभग महिला के पास गांव में मोबाइल नहीं होता। जो हाउस वाइफ है उनके पास ना वो टाइम है और ना ही मतलब कि मेरा ये मानना है कि जैसे ग्राम पंचायत है, सरपंच है वहां के, तो वहां के उस दिन उस सरपंच से कांटेक्ट किया जाए और वहां की महिलाओं को इकट्ठा किया जाए और उन महिलाओं से माउथ टू माउथ बात की जाए। और यही चीज सबसे ज्यादा मुझे लगता, जहां तक मैंने खुद नहीं हुई, क्योंकि हम यहाँ तो हम पढ़ी लिखी महिलाओं से जुड़ सकते हैं, मुश्किल से 5% लगा लीजिए, ये भी ज्यादा है। लेकिन यदि हमने 95% से जुड़ना है तो हमने डोर टू डोर ही काम करना पड़ेगा उसमें। थैंक यू अनीता जी।
Friends, the time has come to pass the mic to coordinator of Viri Literacy Group, Preeti, Rotarian Preeti, over to you. Hello everyone, very good evening. I am Preeti Saini from District 3250 and I am the co-coordinator of Viri India Literacy Group. इसके पहले कि मैं हमारी ब्यूटीफुल ऑडियंस, हमारे स्पेशल गेस्ट और सबको थैंक्स बोलूं, मैं एक छोटी सी पोएम बोलना चाहती हूँ जो खुद लिखी है एंड हमारे थीम से जो हमारी वुमेन एम्पावरमेंट सीरीज है उसके लिए दिस इज वन पोएम जो हमने लिखी है. सो प्लीज आई होप यू ऑल विल एंजॉय इट. अग्नि परीक्षा. जन्मी वो अग्नि परीक्षा देने को, जन्मी वो अग्नि परीक्षा देने को, हर मोड़ में, हर राह में, हर साथ में, हर बिछोड़े में, हर मोड़ में, हर राह में, हर साथ में, हर बिछोड़े में, हर उम्र में, हर बंधन में, कटघरे में खड़ी वो, जमाने की जिल्लत सहे वो, जमाने की जिल्लत सहे वो, हर उठने वाली उंगली के इल्जाम ले वो, दूसरों के पापों का बोझ सहे वो, दूसरों के पापों का बोझ सहे वो, होने वाले दुर्व्यवहार को बर्दाश्त करे वो, फिर क्यों अग्नि परीक्षा दे वो, फिर क्यों अग्नि परीक्षा दे वो. त्याग की मूरत बना उसे, उसके जज्बातों को कुरेद दिया, त्याग की मूरत बना उसे, उसके जज्बातों को कुरेद दिया, अच्छाई की मूरत बना उसे, उसके सच को झूठ में बदल दिया, फिर क्यों अग्नि परीक्षा दे वो, फिर क्यों अग्नि परीक्षा दे वो. स्वयं शक्ति है तू पहचान खुद को, स्वयं शक्ति है तू पहचान खुद को, लौह के इरादे से सामना कर जमाने का, उठेंगे सवाल तुझ पे, चरित्र हरण होगा तेरा, उठेंगे सवाल तुझ पे, चरित्र हरण होगा तेरा, अकेली होगी तू ना डगमगाना, अकेली होगी तू ना डगमगाना, क्योंकि तू नहीं जन्मी, क्योंकि तू नहीं जन्मी अग्नि परीक्षा देने को, क्योंकि तू नहीं जन्मी अग्नि परीक्षा देने को. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जी. बहुत 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 खूबसूरत. थैंक यू. एंड जैसे आपने कहा ना कि बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस एंड वो काफी कुछ जो एक्सपीरियंसेस हम जाते हैं उनसे डील करने के लिए, आई थिंक दैट इज वेरी ट्रू एंड प्रैक्टिकली हम सब उस चीज से रिलेट कर सकते हैं जो आपने अभी कहा है. सो ऑन द बिहाफ ऑफ हमारा जो विरी ग्रुप है उससे उनके बिहाफ पे मैं सबसे पहले आपको बहुत 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 थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आपने इतनी मतलब हम सबको वाकई में इंस्पायर किया है अपनी बातों से, और जो टिप्स अभी आपने दिए वो वाकई में यू नो आई एम श्योर हम सब ने बहुत कुछ सीखा है आपसे अभी, और आपकी जो खुद की जो लाइफ जर्नी है इज वेरी इंस्पायरिंग. आप हम सबको मोटिवेट कर रहे हैं. थैंक यू जी, थैंक यू. एंड अभी मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश थोड़ा और आई थिंक most if for some people who are not that well versed in Hindi, I would like to say a few things in English. जो भी अनिता जी ने कहा है, I would like to summarize it in English so that they will also benefit from it. Anita ji spoke on women empowerment and she also spoke on the importance of various factors like financial independence, that is Arthik Azadi, which is very important in women. She spoke about equality of men and women in all the spheres and why is it important to teach both men and any and every kid from the beginning the importance of equality and how to deal with the situations with everyone and about conduct, moral conduct. One important factor that she also spoke about was education. How important education is, that we should know our rights, how to deal with everything, and the most important thing is to bring that education into use, because if you're not bringing it into use, it's no point. You can study and have as many degrees you want, but if you're not using it, it's just a certificate on the wall, that's it, and it's nothing else. Self-confidence, how we carry ourselves,
is very important, because when we carry ourselves confidently, we give those vibes to the other person that you cannot mess with me. So decision-making rights. Really, you know, this is one thing that people usually miss, but Anitaji spoke about it. Decision making is very important, and we women are usually not given the right to it. So when it comes to self-defense, it is not only about physically defending ourselves, as was made very clear by Anitaji. It's not only defending the physical body that we have, it is also about defending our emotions, our mental state, our rights, and defending ourselves in each and every sphere, even in our families, with other women also, like with our parents, our mom. As she said that she had to actually fight with her mom. Yes, she was understanding, but she had to make her understand. We have to deal with, even when it comes to mother-in-laws and everyone else, we have to defend ourselves in each and every sphere. And Anitaji, you usually people go for physical defense, but you took care of all the other spheres equally, and we are really thankful to you for giving the useful tips. And we would love to collaborate with you for further activities too. We have so much to learn from you. You are a real motivation to all of us. I would also like to thank our Rotarian Julia Gangwani, the convener of VIRI, for coming up with this wonderful platform. Seriously, you have given us this wonderful platform where we all can come together, and we have got this opportunity to work for the for women empowerment, and as a whole for the betterment of the society. Because if a woman is empowered, she empowers the whole universe. Preeti, thank you very much. Before you proceed, I'll just say this group नहीं हो सकता था, मेरा सिर्फ आइडिया था। जैसी अनीता की ये चाह थी, वही चाह मेरी थी, है और रहेगी। आप सबने उसमें आग लगा दी है। एंड तो जस्ट एक मात्र आप सब हैं इसमें जो काम कर रहे हैं, आप सब हैं जो वीरी ग्रुप को हाइट्स पे लेके जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। You're very humble, Julia. Okay, yes, I would also like to thank Rotarian Archana Mohanty for her welcome speech, Rotarian Humali Shah, the coordinator of VIRI Literacy Group, for sharing information about different activities that are being conducted under TEACH. And I would also like to thank Rotarian Anju Gandotra for introducing our speaker of the evening. Thanks to our literacy group, to all the participants, and to all the VIRI members and all the women who were a part of this webinar. And never forget our dear IT team, because it is always at the background, but it works relentlessly. So yes, thanks to them, and to all the people who helped either directly or indirectly to make this meeting successful. Thank you, everyone. And before we move forward, I would like to announce a few dates, important dates. As we all know that this is a Women Empowerment Series, and today's webinar was the first webinar, but we have more webinars coming. It's a series of 4 webinars. The second webinar will be on 9th December, which will be on physical hygiene and related factors when it comes to women's health. And it will be conducted on Genocide Prevention Day. The third one will be on 20th December. That will be related to mental health issues and how to deal with them when it comes to women, their rights, the harassment that they go through, the importance of looking after it. And the last webinar will be on 24th Jan, which will be on the legal rights and harassment and how to deal with them. With this, I would like to thank everyone again. And yes, we all can see that small calendar of the Women Empowerment Series, which is there on the screen. And we have other activities also lined up for the women empowerment sector which we have. It will also include a forum and many other such activities. We will keep you all informed about it. And now I ask Julia to take over.
Thank you, Preeti. After that, after you, I don't think so left anything. I'd say the meeting is adjourned. Thank you very much, everyone, for joining. I hope everybody has learned, and looking forward to see you again in incoming Women Empowerment Series and taking active participation in our Teach program, what we are doing it. And all kudos goes to our literacy group team members. So 3 of them are here, 4, I think so. Archana, Himali, Anjuji, Preetiji, they are here. So please coordinate and bring out your interesting ideas so we can make it very more successful. 6th January, we are completing 1 year of our existence. So I have a big plan for this. Please throw your ideas, how we can make it more vibrant and more productive. So thank you very much, everyone, for joining us. Thank you, Julia.